Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we shall discuss about matter. In our daily life, we see a large variety of things around us that are different in shape, sizes and textures. All these things are matter. हम अपनी डेली लाइफ में अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि शेप्स में, साइज़ में और टेक्सचर में अलग अलग होती हैं, और वो सब क्या है? मैटर है. Everything we see around us is called matter. Now, the thing that we should know is what is matter. What is the definition of matter? आखिर मैटर की डेफिनेशन क्या है? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैटर, everything that we see around us that has mass and that occupies space. हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं जिनका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो क्या होती हैं? मैटर. The things we see around us, these are living, non-living, whatever, all the things. Trees, books, stones, pencil, pen, even this marker, this one board, myself, all are matter. A living thing is also a matter, a human being is also a matter, an animal is also a matter. हर चीज़ मैटर है जो भी हमें अपने आसपास दिखाई देती है. मैटर को हम किस बेस पर क्लासीफाई करते हैं? मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस. What are these two bases? These two bases are on the basis of physical characteristics and on the basis of chemical characteristics. On the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. Firstly, we shall discuss the physical nature of matter. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है? All the things around us are made up of large number of particles. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी हुई हैं, a large number of particles. And these particles are very small in size. ये पार्टिकल साइज में क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं. Then these two things are, all things are made up of large number of particles. And second, these particles are very small in size. Now we shall discuss the characteristics of particles of matter. Characteristics क्या हैं particles की? The characteristics are, first characteristic is particles of matter have space between them. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. सेकेंड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. एंड थर्ड इज particles of matter attract each other. In this universe, all the things have a force of attraction between them.
इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह से मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं एक फोर्स के साथ। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। These are the three characteristics of particles of matter. Now we shall discuss the states of matter. अब हम मैटर के स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। There are three states of matter that you see around you. These are solid, liquid, and gaseous state. The three states of matter are solid state, liquid state, and gaseous state. What is solid state? Firstly, we shall discuss the solid state. In solid state, the particles of matter have strong intermolecular forces between them. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं इन द केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड के केस में दीज हैव ऑल्सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बट लेसर देन सॉलिड्स। इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन लिक्विड्स की जो फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड्स से कम होती हैं। एंड इन केस ऑफ गैसेस देयर आर नेग्लेजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर भागते हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जिस तरह से आपने फील किया होगा कि अगर कोई परफ्यूम की स्मेल है तो वो 1 मिनट में आप पूरे रूम में फील करते हैं, कुछ ही सेकेंड्स में फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी सारे में फैल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो इनमें अ लॉट ऑफ force of attraction means strong intermolecular forces. In case of liquids, have intermolecular forces but less than solids. And in case of gases, the force of attraction is negligible. Now we shall discuss the characteristics of solid, liquid and gases and will differentiate them on the basis of these characteristics. Let us discuss solids, liquids and gases. Solids have strong intermolecular forces. Have forces less than solids. And negligible forces. Second, सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सपोज कीजिए आपने कोई भी सॉलिड लिया, उसको आपने किसी भी वेसल में रख दिया, किसी बॉक्स में रख दिया, वो जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा, वो उस वेसल के अकॉर्डिंग या बॉक्स के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज नहीं करता। जबकि लिक्विड्स जो होते हैं दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम but not a fixed shape. लिक्विड्स की वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। वाटर लिया आपने, आप ग्लास में लेते हैं तो ग्लास की शेप ले लेता है, बाउल में लेते हैं तो बाउल की शेप ले लेता है। जिस भी चीज़ में आप उसे लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेता है। और गैसेस की ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है।
क्योंकि गैस को किसी वेसल में जब फिल किया जाता है तो वो उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर देती है। थर्ड थिंग इज सॉलिड्स आर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? कंप्रेसिबल हो सकते हैं एज लाइक स्पंज, रबर, वो कंप्रेसिबल हो सकते हैं, लेकिन वो भी ना के बराबर, क्योंकि उनकी शेप चेंज नहीं होती कंप्रेस करने के बाद। और बहुत सारे सॉलिड्स तो ऐसे हैं जिनको आप कितना भी कंप्रेस करें उनकी शेप में कोई चेंज आता ही नहीं है, उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो वो कंप्रेसिबल ही नहीं होते। जबकि लिक्विड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स से ज़्यादा। और गैसेस वो तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस को कैसे भी कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं वो गैसेस के कंपैरिजन में कम हार्ड होते हैं, होते ही नहीं हैं, ना के बराबर होते हैं। और गैसेस में तो हार्डनेस और रिजिडिटी होती ही नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है, यानी डिस्टेंस ना के बराबर होता है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स में सॉलिड्स से ज़्यादा होता है और गैसेस के पार्टिकल्स में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज की मैंने अपनी वीडियो में जो भी समझाया उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। और आगे के टॉपिक को देखने के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के सेकंड पार्ट को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।